السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 اور میں ہوں ریحان طارق۔ سب سے پہلے ایک نظر اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ شوکت خانم چوک کے قریب اصغر ندیم سید کی گاڑی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، معروف ڈرامہ نگار زخمی، ڈاکٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو اہلکاروں کے مطابق اصغر ندیم سید کے داہنے کندھے اور کمر پر گولیاں لگی ہیں۔ 2 حملہ آوروں نے ٹارگٹ کر کے گولیوں کا نشانہ بنایا۔ مضروب کی ریسکیو اہلکاروں سے گفتگو۔ تو انہوں نے اتر کے جو ہے نا وہ ایک نے اتر کے گولیاں ان کے سائڈ سے چلائی ہیں اور دوسرے نے جو ہے نا وہ فرنٹ سے گولیاں ماری ہیں۔ اینی شاہدین کے مطابق موٹر سائیکل سوار 2 حملہ آوروں نے سامنے اور دائیں طرف سے گاڑی پر فائرنگ کی۔ ادھر وزیر اعلیٰ نے معروف ڈرامہ نگار اصغر ندیم سید پر فائرنگ کا نوٹس لے لیا، ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم، جبکہ سی سی پی او کا کہنا ہے کہ اصغر ندیم سید کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ تمام پہلوؤں سے واقعے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ نامعلوم حملہ آوروں کے خلاف تھانہ نواب ٹاؤن میں مقدمہ درج۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا آفیسرز کالونی میں چھاپا، جعلی کیچپ بنانے والی فیکٹری سیل کر دی۔ فیکٹری میں ٹائمز وردا اور لاہور کیچپ کے نام سے ٹماٹو کیچپ تیار کی جا رہی تھی۔ اسٹیل انڈسٹری سے بجلی کے بلوں میں ٹیکس وصولی، ایف بی آر کو ڈھیلا نہ دیا۔ ریجنل ٹیکس آفس 1 نے سیلز ٹیکس کی مد میں لیسکو سے 27 کروڑ 50 لاکھ روپے ریکوری کر لی۔ پنجاب یونیورسٹی کے عصمت اللہ زاہد دین فیکلٹی آف ریئلنٹن لرننگ، جبکہ کالج آف فارمیسی کے پروفیسر ڈاکٹر مبشر احمد بٹ کو ڈین فیکلٹی آف فارمیسی مقرر کر دیا گیا۔ ماڈل ٹاؤن سی بلاک میں سابق ضلع ناظم میاں عامر محمود نے پارکنگ سٹینڈ کا افتتاح کر دیا۔ میاں عامر محمود کا کہنا ہے کہ سٹینڈ سے ماڈل ٹاؤن کے مکینوں کو فائدہ ملے گا۔ ضلع انتظامیہ ٹریفک پولیس کا ہال روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن، 2 ٹرک سامان قبضے میں لے لیا، جبکہ چونکہ مرصدوں کی تاجر برادری دکانوں کی مسماری کے خلاف سراپا احتجاج، میٹرو بس سروس 8 گھنٹہ معطل رہی۔ ناپتول گراں فروشی کے بہانے بلا جواز جرمانوں اور تاجر کو تھانے لے جانے کے خلاف اسلام پورہ بازار بند، دکانداروں کی سینئر ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر افشا رباب کے خلاف نعرے بازی۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، 200 روزانہ اجرت، 200 روپے چالان کیسے دوں؟ مسٹری شاہ میں ٹریفک وارڈن کے ستائے فیکٹری ملازم پاور نے اپنی ہی موٹر سائیکل جلا کر قصہ تمام کر دیا۔ شادمان چوک پر دن دہاڑے ڈاکہ، شہزاد انٹرپرائزز کے ملازمین بینک سے 29 لاکھ لے کر جا رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ تشدد سے جاں بحق ہونے والی بچیوں کی ورثاء کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات، میاں شہباز شریف کا دونوں خاندانوں کے لیے 5 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ امن و امان کی صورتحال، وزیر اعلیٰ پنجاب نے سی ٹی ڈی کو وسائل کی فراہمی اور اسے مزید مضبوط بنانے کی ہدایت کر دی۔ ایل ڈی اے کمیونٹی سینٹر مسلم ٹاؤن میں 35 کمرشل پلاٹوں کی نیلامی، جوہر ٹاؤن اور سبزہ کے علاقوں میں واقع 16 پلاٹ 12 کروڑ 60 لاکھ میں فروخت، جبکہ 19 پلاٹوں کی نیلامی میں ناکامی۔ ادھر ایل ڈی اے نے قائد اعظم ٹاؤن میں غیر قانونی کمرشل سرگرمیوں پر 52 عمارتیں سربمہر کر دی۔ ڈی سی او دفتر میں صوبائی وزیر محنت راجہ اشفاق سرور کی زیر صدارت نشتر کالونی کے مزدوروں اور فیکٹری ورکرز کے لیے پلاٹوں کی قراردادی، 208 پلاٹس اور 300 فلیٹس تقسیم کیے گئے۔ ہائی کورٹ میں ایچ ایس این کالج اساتذہ برطرفی کیس کی سماعت، عدالت عالیہ نے کالج بورڈ آف گورنرز کو 15 روز میں فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ادھر گلشن راوی پولیس نے لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے تحت خطیب کے بجائے مؤذن کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ سیشن عدالت نے نثار احمد کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ عدالت عالیہ میں نئے ججز کی تعیناتی کے لیے مختلف ناموں پر غور شروع، فیصل زمان، عامر الرحمان، سکندر، ذوالقرنین سلیم، ڈاکٹر انوار الحق، شہباز رضوی، جیم جوزف، ڈاکٹر امجد بخاری، شاہد جمیل اور شہرام سرور چودھری کے نام شامل۔ ادھر فول پروف سیکیورٹی کے لیے عدالت عالیہ کے داخلی دروازوں پر سرچ رومز کی تعمیر کا آغاز۔ خراب طبی آلات درست کرائے جائیں، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی شیخ زید ہسپتال میں احتجاجی ریلی۔ ادھر ٹاؤن شپ میں کانٹیننٹل میڈیکل کالج کے طلباء کا MBBS پارٹ 1 کے نتائج روکے جانے کے خلاف احتجاج۔ مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے زیر تربیت افسران کے وفد کی چیف ٹریفک آفیسر سہیل چودھری سے ملاقات، CTO نے ڈرائیونگ لائسنسنگ کی سہولتوں کے بارے میں آگاہ کیا۔
चौधरी शुजात हुसैन से अमरीकी सिविल सोसाइटी के वफ्द की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही, मुशाहिद हुसैन सैयद, कामिल अली आगा और चौधरी सालिक हुसैन की शिरकत। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से गैर मुल्की मेहमानों को ज़ोहराना भी दिया गया। पीपी 150 में पीपल्स पार्टी खवातीन विंग के ज़ेरे एहतमाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया। एमपीए फायजा मलिक का कहना है कि जमहूरियत के लिए भुट्टो खानदान की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। साबिक एमडी पेप्को रसूल खान महसूद के बेटे राहील महसूद को डिफेंस के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में वापटा अफसरान और अजीज वातारिब की शिरकत। एमपीए ख्वाजा नसीर उम्र अदायगी, मुशीर ख्वाजा सलमान रफीक 3 रुकनी टीम के हमरा कराची से लाहौर आमद। तुर्किश कंपनी उसकी का 4 रुकनी वफ्द भी 8 घंटे की तारीख से लाहौर पहुंच गया, जबकि शरीफ भारत के गद्दी नशीन पीर मोहम्मद अहसन अशरफी लाहौर पहुंच गए। पुलिस ने अगवा बराए तावान के इश्तिहारी मुलजिम बिलाल अरशद को बैंकॉक से वापसी पर एयरपोर्ट से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया। उधर सिनेमा मालिकान एसोसिएशन के साबिक सदर जहांजेब मिर्जा को लाहौर एयरपोर्ट आमद पर सामान पर वक्त न मिलने पर परेशानी। पीको रोड बीगन हाउस स्कूल सिस्टम बॉयज ब्रांच में महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबा ने गुलहाए अकीदत पेश किए। उधर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन जौहर टाउन में महफिल हुस्न के रातों नात 30 स्कूल से खुसूसी तलबा और तालिबात की शिरकत। लाहौर फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से बायो आमला फॉरवेल कॉस्मेटिक्स के डायरेक्टर मोहम्मद अवैस शेख के एजाज में प्रेस क्लब में इस्तकबालिये का एहतमाम। चिड़ियाघर के बूढ़े मगरमच्छ की हलाकत के 4 बरस बाद इंतजामिया का सिंध से एक और मगरमच्छ मंगवाने का फैसला। नए मेहमान के लिए तालाब की तज़ीन व आराइश मुकम्मल, जबकि चिड़ियाघर में LWMC के ताउन से सफाई आगाही मुहिम का आगाज। स्टाफ और तलबा की शिरकत। गैरिसन पोलो क्लब के ज़ेरे एहतमाम मोटिफिल्म्स पोलो टूर्नामेंट का इफ्तिताही रोज। 4 कोर और मास्टर पेंट्स ने अपने मैचेस जीत लिए। उधर मेंबर्स पोलो टूर्नामेंट के इब्तिदाई रोज नेहरू वैली कॉल पॉइंट MMS ने मैदान मार लिया, जबकि कैनेट कॉलेज ने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को दोस्ताना क्रिकेट मैच में 47 रन से शिकस्त दी थी। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने कल भी बारिश की पेशगोई कर दी। मारूफ कॉलम निगार और ड्रामा नवीस असगर नदीम सैयद को शदीद जख्मी कर दिया। रेस्क्यू 1122 ने तिब्बी इमदाद के लिए डॉक्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक असगर नदीम सैयद बीकन हाउस यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के बाद शौकत खानम की तरफ जा रहे थे। जब वो शादीवाल चौक पहुंचे तो पीछे से आने वाले 2 मोटरसाइकिल सवार इनमें से एक मुलजिम ने उन पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। असगर नदीम सैयद को 2 गोलियां लगी। पुलिस को जाए वकुआ से 2 खौल भी मिले। असगर नदीम सैयद को जख्मी हालत में एक शहरी उन्हीं की गाड़ी पर शौकत खानम ले गया, ताहम शौकत खानम की इंतजामिया ने उनको किसी सरकारी अस्पताल ले जाने का कहा। इसी असना में रेस्क्यू 1122 पहुंच गई और उनको डॉक्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। रेस्क्यूअर आबिद ने बताया कि असगर नदीम सैयद उनसे रास्ते में बातचीत करते रहे और उन्होंने अपनी फैमिली को अपने मोबाइल फोन से हादसे के बारे में इत्तला दी। पुलिस अफसरान भी डॉक्टर्स अस्पताल पहुंचे, जहां असगर नदीम सैयद ने उन्हें बताया कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं, उनको टारगेट किया गया है। पुलिस अफसरान का कहना है कि वो केस की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रहे हैं। असगर नदीम सैयद की गाड़ी के दाएं दरवाजे का शीशा टूटा हुआ है। गाड़ी के विंड स्क्रीन पर 2 गोलियां लगी हैं, जबकि एक गोली गाड़ी के बाएं दरवाजे से निकल गई। गाड़ी के राइट साइड जो ड्राइविंग सीट वाली साइड है वो शीशा बिल्कुल बुरी तरह कुचला हुआ था, टूटा हुआ था और वो बिल्कुल बातें कर रहे थे। उनको हमने वहाँ से बाय सेफ अपनी एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद अपना हमने फर्स्ट एड के लिए उनकी IV लाइन मेंटेन की है, रिंगर इलेक्टेड उनको लगाई है। उसके फौरन बाद मतलब सब फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लीडिंग कंट्रोल किया। मतलब फर्स्ट एड करने के बाद वो हमसे गुफ्तगू करते हुए गए हैं, हमसे बातें कर रहे थे, वो बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने खुद हमें कहा है कि जी आप हमें उधर डॉक्टर्स हॉस्पिटल में शिफ्ट कर। फायरिंग से जख्मी होने वाले मारूफ दानिश्वर और ड्रामा निगार असगर नदीम सैयद का डॉक्टर्स अस्पताल में ऑपरेशन इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। असगर नदीम सैयद को जौहर टाउन के इलाके शादेवाल में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने निशाना बनाया, जिस पर उनके दाएं कंधे और कमर पर 2 गोलियां लगी।
راہگیر نوجوان اصغر ندیم سید کو ان کی گاڑی میں ہی ڈال کر پہلے شوکت خانم ہسپتال لے گیا، تاہم وہاں پر ایمرجنسی ٹریٹمنٹ میسر نہ ہونے کے باعث اصغر ندیم سید کو ریسکیو 1122 کے ذریعے ڈاکٹرز ہسپتال لایا گیا۔ ڈاکٹرز ہسپتال میں ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر افسر علی بھٹی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ اصغر ندیم سید کو آپریشن کیا، جس کے بعد ان کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اصغر ندیم سید کی حالت اب خطرے سے باہر ہے اور وہ روبہ صحت ہیں۔ ڈاکٹرز ہسپتال میں CCPO چودھری شفیق نے ان کی عیادت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ حملہ آوروں کی شناخت اور گرفتاری کے لیے مختلف پہلوؤں پر تفتیش کی جا رہی ہے۔ عینی شاہد محمد احمد نے میڈیا کو بتایا کہ 2 موٹر سائیکل سواروں نے اصغر ندیم سید کی گاڑی پر دائیں اور سامنے کی جانب سے فائرنگ کی۔ انویسٹیگیشن جو ہے اس کے بارے میں ابھی یہ قبل از وقت ہے کہنا کہ یہ کیوں ہوا، اس کا موٹو کیا تھا کسی کا فائر کرنے کا۔ ہم تمام پہلوؤں پہ اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور اس کا جو بھی رزلٹ آئے گا آپ کو بتائیں گے۔ کیا ٹارگٹ کلنگ ہے یہ؟ نہیں، بالکل اس کو یہ کہنا کہ ٹارگٹ کلنگ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی قبل از وقت بات ہے۔ ان کو فائر 2 لگے ہیں، وہ اللہ کی مہربانی سے محفوظ ہیں، بالکل سیف ہیں، ان کو کوئی جان کو خطرہ نہیں ہے۔ ابھی اس کو انویسٹیگیشن جو فائنل ہوگی پھر ہم بتا سکیں گے۔ معروف ڈرامہ رائٹر اصغر ندیم سید کے لکھے گئے ڈراموں نے دنیا بھر میں پاکستانی ڈراموں کو ایک نئی شناخت دی۔ ان کے کیریئر پر ایک نظر ڈالتے ہیں مکرم کلیم کی اس رپورٹ میں۔ جس دہشت گردی کی اور خودکشیوں کی لہر میں ہم پھنس گئے ہیں، اس کا واحد نکلنے کا راستہ ادب ہے، لٹریچر ہے۔ کیوں کہ یہ سوسائٹی میں ہارمونی پیدا کرتا ہے، سوسائٹی میں بیلنس پیدا کرتا ہے۔ اصغر ندیم سید ایک ہماگیر شخصیت کے مالک ہیں۔ جہاں وہ تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، وہیں انہوں نے اردو شاعری، شارٹ سٹوریز اور کالم نگاری میں اپنا منفرد مقام بنایا، اور ان سب سے بڑھ کر انہوں نے ٹی وی کے لیے ایسے ڈرامے تحریر کیے کہ آج وہ کلاسک میں شمار ہوتے ہیں۔ اب ذرا احتیاط اور میری بات غور سے سنیں۔ اس دنیا میں عورت رات کو الزام لگانا سب سے آسان کام۔ اردو ٹی وی ڈرامہ کی تاریخ ان کے شعرا آفاق ڈراموں ہوائیں، چاند گرہن، نجات، غلام گردش اور پیاس کے بغیر نامکمل ہے۔ مجھ کو میرے ڈھولن کا حصہ بھی دے۔ انشاءاللہ جیوے ڈھولن، جتنا دل کرے کھا۔ میری چھوٹی سی زندگی کا نیو ورلڈ آرڈر سے کیا بڑا گہرا تعلق ہے۔ کیا پتہ تمہیں ڈپلومیٹ بننا؟ اردو زبان سے عشق کرنے والے اصغر ندیم سید نے حال ہی میں بول میری مچھلی اور خدا زمین سے گیا نہیں جیسے مشہور ڈرامے تحریر کیے۔ کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایک ایسا پیکج بنائے جو فیملی کا پیکج ہو، جس میں بچوں سے لے کر بڑوں تک اور مختلف طبقوں کے افراد اور مختلف سٹیٹس کے افراد جو اس کو دیکھ رہے ہیں ان کو وہ سیریل کیٹر کرے۔ خدا جانے ان جیسی تخلیقی صلاحیتوں کے مالک پر کس ظالم نے یہ حملہ کیا۔ امید ہے ان پر حملہ کرنے والے جلد ہی کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ اس وقت بلا شبہ وہ سب ان کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں جو ان کے لکھے گئے ڈرامے دیکھ کر بڑے ہوئے۔ مکرم کلیم، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے امن و امان کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر CTT کو مزید وسائل دینے اور اسے مزید مضبوط بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں امن و امان کی صورتحال کے سلسلے میں ہونے والے اجلاس کی صدارت وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کر رہے تھے۔ میٹنگ میں وزیر قانون رانا ثناء اللہ، کرنل ریٹائرڈ شجاع خان زادہ، چیف سیکرٹری نوید اکرم چیمہ، IG خان بیگ، ہوم سیکرٹری اعظم سلیمان، ایڈیشنل IG CTD آفتاب چیمہ اور ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ بھی موجود تھے۔ ریجنل ٹیکس آفس 1 نے سیلز ٹیکس کی مد میں لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی سے 27 کروڑ 50 لاکھ روپے کی ریکوری کر لی۔ ریجنل ٹیکس آفس 1 ذرائع کے مطابق لیسکو سٹیل پگھلانے والے یونٹس اور سٹیل ری رولرز سے بجلی کے بلز میں فی یونٹ 4 روپے سیلز ٹیکس وصول کر رہا تھا۔ لیسکو نے FBR کے لیے سٹیل سیکٹر سے بجلی کے بلوں میں ٹیکس وصولی کرنے کے باوجود FBR کو مکمل ادائیگیاں نہیں کی تھی۔ لیسکو نے FBR کے لیے وصول کیے گئے سیلز ٹیکس پر 16% کٹوتی کی، جبکہ RTO حکام کے مطابق لیسکو کٹوتی کرنے کا حل نہیں تھا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے آفیسرز کالونی میں چھاپا مار کر جعلی ٹماٹو کیچپ بنانے والی فیکٹری سیل کر دی۔ فوڈ سیفٹی آفیسر شالیمار ٹاؤن ایاز خرم کی قیادت میں یاسر عرفات، حسنین رسول، رضا علی، راؤ عبید علی اور حافظ عمران پر مشتمل ٹیم نے کارروائی کی۔ ایاز خرم کا کہنا تھا کہ فیکٹری میں ٹائمز، وردہ اور لاہور کیچپ کے نام سے ناقص ٹماٹو کیچپ تیار کی جا رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ تیار کی جانے والی کیچپ مضر صحت ہے، جس کے استعمال سے پیٹ کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔
साबिक जिला नाज़िम मियां आमिर महमूद ने मॉडल टाउन सी ब्लॉक में 60 लाख की लागत से तामीर होने वाले पार्किंग स्टैंड का इफ्तिताह कर दिया। मॉडल टाउन सी ब्लॉक की मार्केट में कायम होने वाले इस पार्किंग स्टैंड में लगभग 200 गाड़ियां खड़ी करने की गुंजाइश मौजूद है। इस मौके पर मियां आमिर महमूद का कहना था कि मॉडल टाउन सोसाइटी की इंतजामिया रिहायशियों की सहूलियात फराहम करने के लिए मिसाली इकदाम कर रही है। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए सदर सोसाइटी साहबजादा सैफुर रहमान ने बताया कि पार्किंग स्टैंड की तामीर पर 60 लाख के करीब लागत आई है, जबकि वहां पर शहरियों से किसी किस्म की फीस नहीं ली जाएगी। महकमा सेहत ने लेडी वेलिंगटन अस्पताल को शाहबाग के इलाके में मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया है। आजादी चौक पर फ्लाईओवर और एलिवेटेड यू टर्न की तामीर की वजह से लेडी वेलिंगटन अस्पताल को किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने का फैसला किया गया था, जिसकी मंजूरी चंद रोज कबल वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दी थी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने लेडी वेलिंगटन अस्पताल को शादबाग मुंतकिल करने का फैसला किया है, जबकि नए तामीर होने वाले अस्पताल में बेड्स की तादाद में इजाफा भी किया जाएगा। फनी तालीमी बोर्ड के डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर का रियाजी का पर्चा आउट होने में मुलव्विस 4 अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। रियाजी का पर्चा आउट होने में मुलव्विस 4 अफसरान की निशानदही की गई थी। पीडा एक्ट के तहत असिस्टेंट कंट्रोलर मोहम्मद अनवर, 16वें ग्रेड के अफसर अफजल महमूद, लियाकत अली और मोहम्मद खालिद के खिलाफ कार्रवाई होगी और उन अफसरान को मुलाजमत से फारिग भी किया जा सकता है। ताहम कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद उनका दीगर महकमों में तबादला भी मुतवक्को है। जहाजों की कमी ने दिन भर मुसाफिरों का सर चकराए रखा, जबकि अहम शख्सियात की लाहौर आमद का सिलसिला भी जारी रहा। तफसीलात के लिए देखते हैं नबील रजा मलिक की यह रिपोर्ट। जहाजों की कमी की वजह से दिन भर 15 से ज्यादा परवाजें घंटों तखीर का शिकार रहीं। पीने के पानी की फराहमी के लिए काम करने वाली टर्किश कंपनी इसकी का 4 रुकनी वफ्द भी 8 घंटे की तखीर से लाहौर पहुंचा। There are some problems related to water. One of the big problems water supply. MPA नसीर भी उम्रा की अदायगी के बाद PAE की मदीना से 7 घंटे की तखीर से आने वाली परवाज पर लाहौर पहुंचे। मैं समझता हूँ ये अल्लाह पाक की तरफ से एक बड़ी सादत है जो मैंने और मेरी फैमिली ने हासिल की है। बड़ा अच्छा वक्त वहाँ पे गुजारा है। जिला सियालकोट के पुलिस स्टेशन बेगूवाला के एहलकारों ने थाईलैंड से आने वाले अगवा बराए तावान के मफरूर इश्तहारी मुलजिम बिलाल अरशद को एयरपोर्ट ही पर गिरफ्तार कर लिया। अहलखाना के हमरा कराची से आमद पर सिनेमा मालिकान एसोसिएशन के साबिक सदर जहांजेब मिर्जा का कीमती सामान कोई दूसरा मुसाफिर ले गया, जिस पर PIA के नाअहल अमले ने जांच पड़ताल के बगैर पहले तो गुमशुदगी की जाली रसीद थमा दी, ताहम गलती से सामान ले जाने वाले मुसाफिर के खुद राब्ता करने पर जहांजेब मिर्जा को वापस बुलाया और सामान हवाले करके रसीद वापस ले ली। ये सारी मिस अप्रोप्रिएशंस हैं, जिसकी वजह से कस्टमर जो है डिसकंट्रोल भी होता है, तंग भी होता है, परेशान भी होता है और पैसे भी खर्चता है, हालांकि कस्टमर शुड बी किंग। वज़ीर आला के मुशीर ख्वाजा सलमान रफीक भी सेहत के शोबे में प्लानिंग करने वाली अपनी 3 रुकनी टीम के हमरा कराची से लाहौर पहुंच गए। कचूचा शरीफ भारत के कद्दी नशीन पीर मोहम्मद आसन अशरफ भी कराची से लाहौर पहुंचे, जिनका एयरपोर्ट पर अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने भरपूर इस्तकबाल किया। उधर माहिर कानून अशतर औसाफ भी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए हैं। कैमरामैन इम्तियाज शाह के साथ नबील मलिक, सिटी 42। सीवरेज सिस्टम में खराबी के बायस गटर उबल पड़े। गंदा पानी खड़ा होने से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि सीवरेज की खराबी इस इलाके का देरीना मसला है, जिसे आज तक किसी भी जमात से ताल्लुक रखने वाले हुकूमती नुमाइंदे ने हल करने की कोशिश नहीं की। शहरियों का कहना है कि शबाब चौक में जामे मस्जिद के सामने भी गटर का पानी खड़ा हो जाता है, जिससे नमाजियों के कपड़े नापाक हो जाते हैं और मस्जिद आने जाने में नमाजियों को दुश्वारी पेश आती है। दुकानदारों का कहना था कि मुतल्लिका हुकाम को बार बार अपील करने के बावजूद यहाँ सीवरेज का मसला हल नहीं हो पा रहा। इंतजामिया की जानिब से 8 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। ताजरों ने एहतजाजन इस्लामपुरा बाजार बंद करके सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अफशा रुबाब के खिलाफ नारेबाजी की। तफसीलात के लिए देखते हैं उमर असलम की यह रिपोर्ट। आलमगीर रोड इस्लामपुरा पर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अफशा रुबाब ने 2 फल फरोशों नवीद इनामदीन और मोहम्मद सलमान समेत 6 नान भाइयों के खिलाफ रेट लिस्टें आवेजा न होने और वजन कम होने पर कार्रवाई की। इंतजामिया ने नवीद इनाम, मोहम्मद सलमान, अशफाक मकसूद, राशिद इकबाल, इमरान रफीक, इनामुल्ला यूसुफ, वहीद अब्दुल रशीद और मोहम्मद वसीम सलीम को न सिर्फ जुर्माना किया बल्कि उन्हें थाना इस्लामपुरा में बंद भी करा दिया। ताजिरों ने सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर के नारवा रवैये के खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़क पर टायर जलाकर शदीद नारेबाजी की। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए ताजिरों का कहना था कि वो अशिया कम कीमत पर ही फरोख्त कर रहे थे, लेकिन सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अफशा रुबाब ने ताजिरों के साथ जुल्म किया। उनको वार्निंग दी जाती कि ये गलत है, इसका रेट ज्यादा है या इसका वजन कम है, तो वो अगर इसका ना करते
तो फिर कुछ होता। रोटी का वजन कम कोई नहीं था, गवर्नमेंट ने रोटी का रेट निकाला हुआ है 6 रुपये, वो 5 रुपए की रोटी बेच जाएगा, उसका 10 ग्राम वजन कम भी है तो कोई क़यामत नहीं आ गई। रोटी का रेट 6 रुपये मुकर्रर किया हुआ है, वो 5 रुपए का रोटी बेच रहा है और उसे भी पकड़ के बैठाया, उसका क्या कसूर है जी? उसके पास लिस्ट नहीं है। 810 रुपए का तोड़ा आटे का है, 5 रुपए की रोटी बेच रहा हूँ, फिर भी 85 ग्राम की रोटी निकली है, फिर भी ये कह रहे हैं कम है। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए एसी सिटी शेख अब्दुल्ला नैयर इस्लामपुरा बाजार पहुंचे, ताहम इस मौके पर बाजार के 2 ताजिर ग्रुपों के दरमियान ही शदीद नारेबाजी शुरू हो गई। एहतजाज के मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। कैमरामैन अली शेर के साथ उमर असलम, सिटी 42 इस्लामपुरा। ज़िला इंतजामिया ने हाल रोड की ताजिर यूनियन के ताउन से तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए 2 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया। गंदे नाले से मुत्तसिल कंप्यूटर शॉप्स के सामने तजावुज़ात बदस्तूर कायम हैं। हॉल रोड पर तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी टीएमओ फैसल शहजाद और टीओआर शहजाद कुरैशी ने की। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून ट्रेडर्स विंग के सदर बाबर महमूद और ताजिर रहनुमा शब्बीर लभा ने जिला इंतजामिया को मुकम्मल मुआवनत फराहम की। जिला इंतजामिया ने बिल्डिंग लेन से बढ़ी हुई तजावुज़ात, फट्टे, काउंटर और आरजी नौयत की तजावुज़ात का खात्मा करते हुए 2 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया। मियां मीर कॉलोनी में लड़कियों को छेड़ने वाला नौजवान मोहल्लेदारों के हत्थे चढ़ गया। अहले इलाका ने दुर्गत बनाने के बाद सर मूंड कर पुलिस के हवाले कर दिया। मियां मीर पुलिस के मुताबिक बिलाल कॉलोनी का रिहायशी मोहम्मद उमर अपने साथियों के साथ मिलकर मियां मीर कॉलोनी में एक घर में लड़कियों से छेड़खानी कर रहा था। इसी दौरान लड़कियों का शोर सुनकर मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए और उमर की दुर्गत बनाने के बाद सर मोड़ दिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अहले इलाका का कहना था कि उमर के खिलाफ पहले भी मुस्तफाबाद पुलिस को दरख्वास्त दी गई, ताहम कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। लाहौर चिड़ियाघर में हफ्तावार सफाई मुहिम का आगाज हो गया। सफाई मुहिम के पहले मरहले में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात ने आगाही वॉक की। मजीद बता रही हैं फिजा इमरान। चिड़ियाघर में शुरू होने वाली हफ्ता सफाई मुहिम में डायरेक्टर नईम भट्टी समेत चिड़ियाघर इंतजामिया, वर्कर्स, मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात, असातिज़ा और शहरियों रोज का आगाज आगाही वॉक से किया गया। इस मौके पर नन्हे मुन्ने तलबा व तालिबात ने सफाई की अहमियत और जरूरत के हवाले से आगाही बैनर्स उठा रखे थे। चिड़ियाघर के डायरेक्टर नईम भट्टी का कहना था कि हफ्तावार सफाई मुहिम के आगाज का मकसद शहरियों में माहौल को साफ सुथरा रखने और जानवरों को बीमारियों और जरासीम से बचाने के मुतालिक आगाही पैदा करना है। इसका मकसद यही है कि जो है लोगों को आगाही दी जाए कि अपने माहौल को साफ सुथरा रखें। और लाहौर ज़ू जो है ये हमारा एक नेशनल लेवल पे एक एसेट है, एक इदारा है और इसमें ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान से बल्कि जो गैर मुल्की लोग जो है वो भी यहाँ पे इसको देखने आते हैं। इस मौके पर तलबा और तालिबात ने भी चिड़ियाघर को साफ सुथरा रखने और कूड़ा कूड़ेदान में डालने और जानवरों की सेहत का ख्याल रखने के अज़्म का इजहार किया। हम यहाँ पर सफाई का ख्याल रखेंगे ताकि वो जानवर खुश रहें। हम जू को साफ रखेंगे, हम अपने शहर को भी साफ रखेंगे और हमें जानवरों से प्यार है। हम जू में गंद नहीं फैलाएंगे, हम जानवरों का ध्यान रखेंगे, जानवरों का ख्याल रखेंगे और जानवरों से प्यार करेंगे। हफ्तावार सफाई मुहिम के पहले रोज शहरियों को चिड़ियाघर के माहौल को साफ सुथरा रखने और जानवरों के पिंजरों में कूड़ा करकट समेत दीगर खाने पीने की अशिया फेंकने के हवाले से पैदा होने वाले मसाइल और बीमारियों से भी आगाह किया गया। कैमरामैन अली शेख के साथ फिजा इमरान, सिटी 42। चिड़ियाघर के मगरमच्छ की हलाकत को 4 साल बीत गए। चिड़ियाघर का मगरमच्छ तालाब नए मेहमान का मुंतजर है। लाहौर चिड़ियाघर में गुज़श्ता 4 साल से मगरमच्छ मौजूद नहीं है। 1980 में लाए गए मगरमच्छ बूढ़े होने की वजह से 4 साल कबल हलाक हो गए थे। तब से अब तक शायकीन की आंखें नए मेहमान की राह तक रही हैं। मगरमच्छ का तालाब अब तक खाली पड़ा है। इस हवाले से लाहौर चिड़ियाघर के डायरेक्टर नईम भट्टी का कहना है कि चिड़ियाघर के लिए सिंध से नए मगरमच्छ मंगवाए जा रहे हैं, जो 1 महीने तक लाहौर चिड़ियाघर के हवाले कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से तशद्दुद के बायस जाँ बहक होने वाली बच्चियों अजरा बतूल और फिजा बतूल के वरसा ने मुलाकात की और तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का मुलाकात में कहना था कि तशद्दुद में मुलव्वस मुल्ज़िमान करार वाक़ई सजा से बच नहीं पाएंगे और मजलूम खानदानों को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी।
वजीर आला ने कहा कि वो गमजदा वालिदैन की बच्चियां तो वापस नहीं ला सकते, ताहम उन्हें इंसाफ दिलाने का वादा पूरा करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह को दोनों मुकदमात में तफ्तीश में पेशरफ्त का खुद जायजा लेने की हिदायत की। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अजहर हुसैन मलिक ने फैसल टाउन और डिफेंस बी में तशद्दुद से हलाक होने वाली 2 घरेलू मुलाजमाओं अजरा और फिजा बतूल के केसेस की पैरवी के लिए 2 सीनियर प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अजहर हुसैन ने दोनों केसेस की पैरवी के लिए महबूब अली और अल्ताफ इसहाक पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी है, जो न सिर्फ केस की तफ्तीश की निगरानी करेंगे बल्कि मुकदमात का चालान भी खुद अदालत में पेश करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस अफसरान को भी हिदायत जारी की हैं कि कोई जिम्नी इन प्रोसिक्यूटर्स को दिखाए बगैर ना लिखी जाए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन चौधरी अब्दुल रब ने कहा है कि पुरानी अनारकली बम धमाकों में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मुलव्विस है। कुछ मुलजिम पकड़ लिए हैं, जबकि 125 वारदातों में मुलव्विस अदनान भट्ट गिरोह के 19 अराकीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी चौधरी अब्दुल रब ने अपने दफ्तर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मॉडल टाउन सीआईए पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस अदनान भट्ट गिरोह के 19 मुलजिमान को गिरफ्तार किया, जिन्होंने 125 वारदातों का एतराफ किया है। एसएसपी ने बताया कि सीआईए सिटी पुलिस ने करीम पार्क से इफ्तिखार अहमद के 4 साल बच्चे अबू बकर को तावान के लिए अगवा करने वाले उसके हमसाए मोहम्मद दाऊद और उसकी अहलिया रजिया बीबी को गिरफ्तार करके बच्चा बरामद कर लिया है। रोज रोज के चालान से तंग नौजवान ने बीच सड़क अपनी मोटरसाइकिल नजर आतिश कर दी। नौजवान के एहतजाज में डीके मोटरसाइकिल सवार और दुकानदार भी शामिल हो गए और वार्डन्स के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। वकास अहमद की ये रिपोर्ट। बाबर नामी नौजवान शाहदरा से दरोगे वाला काम पर जा रहा था, जिसे कोऑपरेटिव स्टोर के करीब ट्रैफिक वार्डन ने रोका और ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर चालान कर दिया, जिस पर बाबर ने रोज रोज के चालानों से तंग आकर मोटरसाइकिल सड़क में खड़ी की और आग लगाकर एहतजाज शुरू कर दिया। देखते ही देखते दीगर मोटरसाइकिल सवार, दुकानदार और राहगीर भी इसके साथ एहतजाज में शामिल हो गए और ट्रैफिक वार्डन के खिलाफ नारेबाजी की। एनी शाहिदीन ने बताया कि नौजवान ने ट्रैफिक वार्डन से चालान न करने की मुतअद्दिद बार दरख्वास्त की, मगर उसने उल्टा बदतमीजी शुरू कर दी। चालान काटने लगा। उसने कहा बेटा भाई मैं अभी चालान दे के आया हूँ, तेरी मेहरबानी तू मुझे छोड़ दे, मेरे पास पैसे नहीं है। उसने कहा तेरी ऐसी की तैसी और गालियां दी और उसे थप्पड़ मारा और बुरा भला का उसने तैश में आके आग लगा दी। रियाती कर देने चलान उत्ते चलान कर छड़ देने, चलान होया वे ठीक है हो गया, मुड़ के हर चीज होने के बावजूद भी कोई ना कोई ऑब्जेक्शन ला के कहते गड्डी बंद करो या चलान करो। इंचार्ज ट्रैफिक सेक्टर इंस्पेक्टर बिलाल ने अपने वार्डन रिजवान का दिफा करते हुए कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर चालान किया गया, जो कानून के मुताबिक है। वार्डन ने रोका है उसको बाइक पे कि भाई आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं। उसने कहा जी मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मेरा कुछ दिन पहले भी चालान हुआ है। उसने कहा आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। उसने ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पे वायलेशन पे लीगली बनता है, चालान कर दिया। ये अग्रेसिव हो गया है। एहतजाज के बायस जीटी रोड पर ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासर हुआ। मिस्री शाह पुलिस ने मुज़ाकरात के बाद बाबर को एहतजाज खत्म करने पर आमादा कर लिया और मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ वकास अहमद, सिटी 42। ई टिकटिंग और पिंक बस सर्विस की नाकामी के बाद लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का एक और नया शाहाना मंसूबा मुसाफिरों के लिए SMS सर्विस शुरू करेगी। शहरियों को जदीद ट्रांसपोर्ट सहूलियात फराहम करने के लिए 4 साल कबल कायम की गई लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी अपने बेशतर मंसूबों में नाकाम हो गई है। LTC ने शहर में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों के निजाम को इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग पर मुंतकिल करने का मंसूबा शुरू किया था, जो कि फाइलों की नजर हो गया। इसी तरह LTC ने खवातीन के लिए अलहदा बस सर्विस शुरू की। इब्तिदा में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 3 बसें चलाईं, जो कम होकर सिर्फ 1 रह गई है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन में महफिल हुस्न किरात और नात का इनेकाद किया गया, जिसमें लाहौर भर के 30 स्कूलों से खुसूसी तलबा और तालिबात ने शिरकत की। जौहर टाउन में वाक़ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन में मुनाकिद होने वाली महफिल हुस्न किरात और नात में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के डायरेक्टर मोहम्मद फाजिल चीमा ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मारूफ नात ख्वां पीर सैयद मोहम्मद मुकद्दस काज़मी और कारी सैयद नवीद कमर समेत खुसूसी बच्चों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। हुकूमत पंजाब महकमा एनर्जी में इंजीनियर्स की कंसल्टेंसी और महकमे की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए सिर्फ 5 लाख रुपए खर्च करेगी। सूबे में तवानाई का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जबकि महकमा एनर्जी में बेशतर स्टाफ नॉन टेक्निकल है। दूसरी जानिब सूबे को तवानाई बहरान से मुतालिक दरपेश मसाइल के हल के लिए बायोमैस, बायोगैस और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जैसे अहम मंसूबों पर काम किया जा रहा है।
लेकिन टेक्निकल और मुतल्लिका स्टाफ न होने की वजह से अभी तक सूबा तवानाई बहरान से नहीं निकल सका। महकमा एनर्जी की जानिब से अफसरान की कंसल्टेंसी और महकमे की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए समरी भिजवाई गई थी। हुकूमत पंजाब ने महकमा तवानाई के शोबा इंजीनियरिंग में मास्टर और बैचलर्स डिग्री के हामिल अफसरान की तैनाती और उनकी कंसल्टेंसी खिदमात हासिल करने के लिए सिर्फ 5 लाख रुपए फंड्स की मंजूरी दी है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द ने गैस की बंदिश के हवाले से गवर्नर पंजाब से मदद मांग ली। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में वफ्द की क़यादत शहजाद आजम खान कर रहे थे। वफ्द ने गवर्नर पंजाब को बताया कि हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स को टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हिस्सा तस्वुर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से उन्हें गैस की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद है। उनका कहना था कि एमडी सुई गैस आरिफ हमीद ने गैस की बंदिश के अहकाम जारी किए हैं, जबकि उनके पास ऐसा इख्तियार ही नहीं है। सूबाई वजीर मेहनत और इंसानी वसाइल राजा अशफाक सरवर की जेर निगरानी नश्तर लेबर कॉलोनी में मजदूरों और फैक्ट्री वर्कर्स में 208 प्लॉट्स के लिए कंप्यूटराइज कुरानंदाजी की गई, जबकि लेबर कॉलोनी डिफेंस में 300 मजदूरों के प्लॉट्स की अलॉटमेंट्स कर दी गई हैं। डीसी ऑफिस नादिर हॉल में होने वाली कुरानंदाजी के मौके पर डीसी लाहौर डॉक्टर अहमद जावेद काजी समेत महकमा मेहनत और इंसानी वसाइल के अफसरान मौजूद थे। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के प्रोजेक्ट मैनेजर उमर मुबीन ने कंप्यूटराइज कुरानंदाजी की और इस सॉफ्टवेयर की शफाफियत के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज के 50 तलबा ने MBBS पार्ट 1 के नताइज रोके जाने के खिलाफ कॉलेज रोड टाउनशिप पर एहतजाज करके सड़क ब्लॉक कर दी। तफसीलात बता रहे हैं अकमल सुमरो इस रिपोर्ट में। कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज के तलबा ने कॉलेज रोड ब्लॉक करके सख्त एहतजाज किया, जिसके बायस ट्रैफिक भी जाम हो गई। एहतजाजी तलबा ने कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। तलबा का कहना था कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से नताइज रोके जाने की जिम्मेदार कॉलेज इंतजामिया है। तलबा ने बताया कि कॉलेज को पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल ने 50 सीटों पर दाखिले भेजने की इजाजत दे रखी है। ताहम इंतजामिया ने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए 100 तलबा के दाखिले भेज दिए, जबकि रजिस्ट्रेशन का अमल भी मुकम्मल नहीं कराया गया। उन्होंने हमसे 20-20 लाख लिया, 15-15 लाख, 10-10 लाख कम से कम इन्होंने हमसे पैसे लिए, लेकिन इन्होंने हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। इन्होंने हमारे दाखिले भेज दिए, आखिरी दिन इन्होंने स्टे लेकर, लेकिन फिर इन्होंने हमें इंटरनली भी फेल किया हुआ है। तलबा का कहना था कि इंतजामिया ने उनसे लाखों रुपए बटोर कर मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया है। मुतासरीन ने मुतालबा किया कि आला हुक्काम वाक़े का नोटिस लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। पूरा साल इन्होंने हमारे से झूठ बोला कॉलेज वालों ने, इन्हें अलाउड थे 50 और इन्होंने बैठाया 100। अब हमने UHS के एग्जाम्स भी दे दिए हैं, हमारा रिजल्ट नहीं आया। 3 नवंबर का जो ना 3 जनवरी का हमारा रिजल्ट आया हुआ है और हमें नहीं बताया। 1 साल से इन्होंने हमें रखा हुआ है और ना हमारी रजिस्ट्रेशन करवाई है और ना ही इन्होंने हमारा एग्जाम हो गए, हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा। तलबा का कहना था कि MBBS पार्ट 1 के इम्तिहानात देने के बावजूद उन्हें 3 हफ्तों से नताइज से बेखबर रखा जा रहा है, जबकि कॉलेज इंतजामिया ने एहतजाज के हवाले से कोई भी मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। कैमरामैन आतिफ यासीन के साथ अकमल सोमरो, सिटी 42। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से मुतालबात के हक में शेख जैद अस्पताल में एहतजाजी रैली निकाली गई। नौजवान डॉक्टर्स का कहना है कि मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। YDA ने सर्विस स्ट्रक्चर पर अमल दरामद न होने और अस्पतालों में नाकाफी तिब्बी सहूलतों पर शेख जैद अस्पताल में एहतजाज किया। एडमिन ब्लॉक के सामने नौजवान डॉक्टर्स ने जबरदस्त नारेबाजी की। नौजवान डॉक्टर्स का कहना था कि शेख जैद अस्पताल में इलाज मुआलजे की सहूलतें नाकाफी हैं, बेशतर तिब्बी आलात और मशीनरी खराब पड़ी है, जबकि अस्पताल में अद्वियात के लिए फंड्स मैसर नहीं हैं और मरीजों के इलाज के लिए सरेंज, ड्रिप और सर दर्द की गोली तक मुहैया नहीं की जा रही। चुंगी अमरसदों की ताजर बिरादरी आज भी दुकानों की मसमारी के खिलाफ सरापा एहतजाज बनी रही। मेट्रो बस सर्विस को आधा घंटा मुअत्तल किए रखा। ताजरों ने यू टर्न बनाए जाने की शदीद मुखालिफत करते हुए कहा कि दुकानें गिराए जाने से गरीब ताजर अपनी रोजी के जराए से महरूम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुंगी अमरसद और उससे मुत्तसिल मार्केटों के ताजरों का देरीना मुतालबा है कि टर्न ओवर की बजाय फ्लाई ओवर की तामीर की जाए ताकि गरीब अफराद बेघर और बेरोजगार होने से बच जाएं। लाहौर फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से बायो आमला फारवल कॉस्मेटिक्स के डायरेक्टर मोहम्मद अवैस शेख के एजाज में इस्तकबालिया किया गया। प्रेस क्लब में लाहौर फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से बायो आमला फारवल कॉस्मेटिक्स के डायरेक्टर मोहम्मद अवैस शेख के एजाज में दिए जाने वाले इस्तकबालिये में सदर लाहौर फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन इकबाल चौधरी, नायब सदर उमर शरीफ, आसिम बेग, अकमल भट्टी, वसीम बाबर, परवेज अल्ताफ, आबिद नवाज और शफीक मालिक समेत दीगर फोटो जर्नलिस्ट ने शिरकत की।
गैरिसन पोलो क्लब के ज़ेरे एहतमाम मोटिफिस पोलो टूर्नामेंट का आगाज हो गया। इफ्तिताही रोज 4 कोर और मास्टर पेंट्स ने अपने मैचेस जीत लिए। फोर्ट्रेस स्टेडियम में शुरू होने वाले टूर्नामेंट के पहले मैच में 4 कोर ने डायमंड पेंट्स को 7.5 के मुकाबले में 11 गोल से शिकस्त दी। फातेह टीम की जानिब से राजा समीउल्लाह और शाह शुमाइल आलम ने 4-4 जबकि कर्नल शहरियार मुनीर ने 1 गोल स्कोर किया। हरीफ टीम की तरफ से राजा तैमूर नदीम और अहमद अली टवाना ने 3-3 गोल स्कोर किए। लाहौर क्लब के ज़ेरे एहतमाम मेंबर्स पोलो टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। इफ्तिताही रोज वनहर वैली कॉल पॉइंट एमएमएस ने मैदान मार लिया। पोलो क्लब में शुरू होने वाले टूर्नामेंट के इफ्तिताही रोज 2 चक्कर्स के मैचेस खेले गए। पहला मैच वनहर वैली ने बारीज के खिलाफ जीत लिया। वनहर वैली ने मैच में 6 गोल स्कोर किए जबकि बारीज टीम कोई भी गोल स्कोर न कर सकी। दूसरे मैच में कॉल पॉइंट ने बारीज के खिलाफ 1.5 के मुकाबले में 5 गोल से फतह अपने नाम की। पहले दिन के तीसरा मैच वनहर वैली और कॉल पॉइंट के माबैन 3-3 गोल से बराबर रहा। चौथे मैच में एमएमएस ने स्टॉलेंस के खिलाफ 2 के मुकाबले में 8 गोल से कामयाबी हासिल की। कैनेड कॉलेज ने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को दोस्ताना क्रिकेट मैच में 47 रन से शिकस्त दे दी। कैनेड कॉलेज मेन ग्राउंड में खेले गए प्रैक्टिस मैच में मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 3 विकेटों पर 174 रन बनाए। कैनेड कॉलेज की जानिब से आयशा नाज ने शानदार बैटिंग करते हुए 45, इरम जावेद 39 और नतालिया परवेज ने 25 रन स्कोर किए। हरीफ टीम की जानिब से मरियम शफीक ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की टीम 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 128 रन बना सकी। आयशा शफीक 25 और जैनब रियाज 20 रन बनाकर नुमाया रही। से रकम निकलवा कर वापस आने वाले मुलाजमीन से 29 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। शहजाद इंटरप्राइजेस के मुलाजमीन असद वकास स्टैंडर्ड चार्टर बैंक से 29 लाख रुपए की रकम निकलवा कर वापस दफ्तर जा रहे थे। शादमान चौक के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने उनकी गाड़ी को रोका और गन पॉइंट पर रकम छीन ली। वारदात के बाद मुलजिम माल रोड की तरफ फरार हो गए। वारदात की इत्तला पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी मॉडल टाउन तारिक अजीज का कहना है कि वारदात में मुनज़्ज़म गिरोह मुलव्विस है, ताहम मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। कंपनी उसकी के 4 रुकनी वफ्द ने वासा हेडक्वार्टर का दौरा किया और एमडी डॉक्टर जावेद इकबाल से मुलाकात की, जबकि चेयरमैन एलटीसी ख्वाजा अहमद हसन की जानिब से वफ्द के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाइया दिया गया। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। इस्तांबुल में वाटर एंड सैनिटेशन के निजाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने वाली कंपनी एस्की के अलेसान कोयोन को निकाती एग्रालियो ग्लू, ईसा यलमास और कैम्बल क्लक्सलान पर मुश्तमिल 4 रुकनी वफ्द ने 90 शाहराए कायदे आज़म पर चेयरमैन एलटीसी ख्वाजा अहमद हसन से मुलाकात की। चेयरमैन एलटीसी की जानिब से तुर्क वफ्द के एजाज में पुरतकल्लुफ दोहराने का एहतमाम भी किया गया। ख्वाजा अहमद हसन ने बताया कि तुर्क कंपनी न सिर्फ मानसून में पेश आने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए जामे प्लान मुरतब करेगी, बल्कि वासा एहलकारों को जदीद खतूत पर भी देगी। तुर्क वफ्द में शामिल माहिरीन ने तजवीज दी कि हुकूमत पंजाब 5 साल मनसूबाबंदी की बजाय 30 साल के लिए मनसूबाबंदी करे और लाहौर के लिए अलहदा डैम कायम किया जाए। वो कहते हैं कि हम सारे जो आपके डिफिकल्ट पॉइंट्स हैं, जो प्रॉब्लमेटिक इश्यूज हैं, जो मानसून के दरमियान जहां पॉन्डिंग हो जाती है, वो पॉइंट्स भी विजिट करेंगे और आपके जो डी वाटरिंग पंप्स हैं, आपके पंपिंग स्टेशंस हैं, उसको भी विजिट करेंगे और आपका पूरा जो सिस्टम है उस पर भी एक ब्रीफिंग लेंगे। दूसरी जानिब इसकी के 4 रुकनी वफ्द ने वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग का दौरा करके एमडी वासा डॉक्टर जावेद इकबाल से भी मुलाकात की। वासा हुकाम ने तुर्क वफ्द को शहर के सीवरेज, वाटर सप्लाई सिस्टम, ड्रेनेज और वेस्ट वाटर पर ब्रीफिंग दी। तुर्क कंपनी एस्की के वफ्द ने वासा अफसरान को इदारे में लाई जाने वाली इस्लाहात पर भी जामे ब्रीफिंग दी। एस्की का वफ्द 25 जनवरी तक लाहौर में मौजूद रहेगा और वासा की तनसीबात का मुआयना करेगा, जबकि अहम मुआहिदा भी मुतवक्के है। एलडीए का कायदे-ए-आज़म टाउन में ग्रैंड ऑपरेशन गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों पर 52 इमारतें सर्वमहर कर दी। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के कमर्शलाइजेशन और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अमले ने कायदे-ए-आज़म टाउन में मुश्तरका ऑपरेशन के गैर कानूनी तजारती सरगर्मियों और कमर्शलाइजेशन फीस की अदम अदायगी पर 14 प्लाटों पर कायम 52 इमारतें सर्वमहर कर दी। इन इमारतों में प्लॉट नंबर 5 ब्लॉक 13B1 पर 3 दुकानों में कायम अल्फलाह इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लॉट नंबर 141 ब्लॉक 13B1 पर 3 दुकानों में कायम सोनी सेंटर और प्लॉट नंबर 148 ब्लॉक 13B1 पर अल-फजल रेस्टोरेंट शामिल हैं। एलडीए ने जौहर टाउन और सब्जाजार स्कीमों में 16 कमर्शियल प्लॉट 12 करोड़ 60 लाख 86 हजार रुपए में नीलाम कर दिए। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम जौहर टाउन और सब्जाजार में वाक़े 35 में से 16 कमर्शियल प्लॉट मजमूई तौर पर 12 करोड़ 60 लाख 86 हजार रुपए में नीलाम हुए।
سب سے زیادہ بولی جوہر ٹاؤن اسکیم کے بلاک D2 میں واقع 15 مرلے کے کمرشل پلاٹ نمبر 402 کے لیے دی گئی۔ اس کی بنیادی قیمت 14 لاکھ روپے فی مرلہ رکھی گئی تھی، جبکہ یہ 15,50,000 روپے فی مرلہ کے حساب سے مجموعی طور پر 2 کروڑ 32 لاکھ روپے میں نیلام ہوا۔ چیئرمین ماڈل بازار پنجاب ملک محمد افضل کھوکھر نے کہا ہے کہ شیر شاہ کالونی رائے بند روڈ سمیت صوبے بھر میں نئے ماڈل بازار بنائے جائیں گے۔ مال روڈ پر MNA اور چیئرمین ماڈل بازار پنجاب ملک افضل کھوکھر کی زیر صدارت ماڈل بازار فیز 2 کے سلسلے میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں رکن قومی اسمبلی ملک ابرار احمد، ACS سہیل عامر، DCO گجرانوالہ عصمت محمود، DCO راجن پور غازی امان اللہ، DCO قصور سید جاوید اقبال، DOC وسیم عمر اور میاں احسن جاوید سمیت دیگر افسر موجود تھے۔ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ حکومت مہنگائی اور بے روزگاری سمیت دیگر مسائل پر کل جماعتی کانفرنس بلائے۔ سینیٹر چودھری شجاعت حسین سے ان کی رہائش گاہ پر امریکی سول سوسائٹی کے وفد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری پرویز الہی، مشاہد حسین سید، کامل علی آغا اور چودھری صالح حسین سمیت دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ مسلم لیگ کاف کی جانب سے غیر ملکی مہمانوں کے اعزاز میں زہرانہ بھی دیا گیا۔ یورپی یونین کے تعاون سے PC ہوٹل میں GSP پلس اسٹیٹس کے بعد ٹیکسٹائل اور لیدر گارمنٹ سیکٹر میں معاشی گروتھ بڑھانے کے لیے پبلک پرائیویٹ ڈائیلاگ پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس میں دونوں شعبوں سے وابستہ کاروباری شخصیات شریک ہوئیں۔ PC ہوٹل میں منعقدہ پروگرام میں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر انجینئر سہیل ناشاری اور ایگزیکٹو کمیٹی ممبر مدثر مسعود سمیت لیدر اور ٹیکسٹائل انڈسٹری سے وابستہ کاروباری شخصیات شریک ہوئیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں ڈاکٹر عصمت اللہ زاہد اور ڈاکٹر مبشر بٹ کو ڈین تعینات کر دیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب نے تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے چانسلر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے ڈاکٹر عصمت اللہ زاہد کو ڈین فیکلٹی آف اورینٹل لرننگ تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے، جبکہ کالج آف فارمیسی کے پروفیسر ڈاکٹر مبشر احمد بٹ کو ڈین فیکلٹی آف فارمیسی تعینات کر دیا گیا ہے۔ دونوں پروفیسرز کی ڈین تعیناتی کا نوٹیفیکیشن ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بھی جاری کر دیا ہے۔ بیکن ہاؤس اسکول سسٹم پیکو روڈ بوائز برانچ میں عید میلاد النبی کے سلسلے میں محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ نعت خوانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ پیکو روڈ پر ہونے والی محفل میلاد میں بیکن ہاؤس اسکول کی پرنسپل نبیلہ عباس، ہیڈ مسٹریس نوشین شاہد، فہد مواہب، کاظم حسین کاظم، مسز امبر سمیت طلباء اور والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ محفل میلاد میں نعت خوانوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کیے تو شرکاء جھوم اٹھے۔ محفل میلاد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ اور حیات طیبہ پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔